Hello everyone, I am Shreyas Agrawal. Welcome to the Wisdom classes. Today we are going to discuss about the topic called trigonometry. So before starting the topic, we must know about the right angle triangle. So right angle triangle क्या होता है? We draw a triangle. We draw a triangle ABC such that right angle is at B. Such a triangle is called right angle triangle. So the triangle in which one of the three angle is 90° is called right angle triangle. In such a triangle, we can apply Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem states that Pythagoras theorem states that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. What is hypotenuse, what is perpendicular, and what is base? We calculate the respect of angle C, then our base will be the side BC, that is adjacent to the angle C, and perpendicular will be the side opposite to the angle C, that is AB equals to perpendicular. And the biggest side, that is AC, called hypotenuse. So in respect of angle C, we can write the above statement as hypotenuse is AC, AC square equals to perpendicular square, that is AB square, plus base square, that is BC. Such a statement Pythagoras. So in a right angle triangle, if we know the any of two sides of a triangle, then we can calculate the third side of the triangle, the help of Pythagoras. Okay. So let's move towards the trigonometric ratios. What are the trigonometric ratios? There are six kinds of trigonometric ratios that we have to study. The first one is sine, sine of angle. Second is cos of angle. And third is tan of angle. Fourth one is cosec of angle A. And fifth is sec of angle A. Sixth one is cot of. We draw a triangle ABC such that right angle is at B and we have to calculate in the respect of angle A. Then this side is base, that is adjacent to the angle, adjacent side to the angle, and this one is perpendicular, that is opposite to the angle, and this one is the hypotenuse, that is the biggest side of the right angle triangle. We can write base, the short form, as B, perpendicular as P, and hypotenuse as H. Then sine of angle A will be perpendicular upon hypotenuse, that is P upon H, and cos of angle A equals to P upon H. Tan of angle A is perpendicular upon base, P upon B. Then cosec of angle A is the reciprocal of sine of angle A. You can write it 1 upon sine A, that is H upon, here H is hypotenuse and perpendicular.
and in sec of angle A. Sec is the reciprocal of cos of angle A. That is hypotenuse upon base. Cot is the reciprocal of tan of angle. You can write it as base perpendicular. That are the 6 trigonometric ratios that we have to study the trigonometry. Let's move towards the question. Our first question is, a triangle ABC, right angled at B, A is equals to 24 centimeter, B 7 centimeter. We have to find sine of A, cos of A, and sine of C and cos of C. So first of all, we have to draw a triangle ABC. For our first question, we have to calculate the respect of angle A. We will write A, and the right angle is given at point B, and the side will be. So the right angle triangle, given that AB is 24 centimeter, B की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर. हमको अभी AC की वैल्यू नहीं पता है, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. So what is Pythagoras theorem? We write Pythagoras theorem in short as PGT. By using PGT, we can write hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Here hypotenuse is the side AC, perpendicular is the side BC that is opposite to the angle A, and base the side AB that is adjacent to the angle. We have the values of perpendicular and base. We have to calculate the value of hypotenuse. Perpendicular here is 7 centimeter and base is 24 centimeter. Okay? Hypotenuse square equals to square of 7 is 49, square of 24 is 576. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आने वाला है 625. और hypotenuse will be whole root of 125, that is 25 cm, because 25 का स्क्वायर 625 होता है. ओके, तो अब हमको तीनों वैल्यूज पता चल गई. अब हम आसानी से सारे रेशियोज निकाल सकते हैं. अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहें तो साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस अभी अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर. दैट इज साइन ऑफ एंगल ए. नेक्स्ट, द कॉस ऑफ एंगल ए. कॉस ऑफ एंगल ए जैसा कि हमने देखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है. हियर बेस की वैल्यू है 24 एंड हाइपोटेनियस है 20. दैट इज द कॉस ऑफ एंगल ए. ये बात हो गई ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमको सी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट. सी के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अगर हम सी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, अगर हम ये वाले एंगल को इरेज कर दें, अगर हम ये वाले एंगल को इरेज कर दें और नेक्स्ट एंगल हम सी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर जो है इंटरचेंज हो जाएंगे. ऐसा क्यों होगा? कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं. तो एंगल अगर हम सी को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला साइड एंगल साइड ए बी है.
तो इसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, और जो इसके एडजेसेंट वाला साइड है हाइपोटेनियस को छोड़ के, वो हो जाता है बेस। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये वाला साइड था और बेस ये वाला साइड था। लेकिन हमको अब यहाँ पे सी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे पे परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड ए बी, तो साइड ए बी की वैल्यू है 24, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो तो सेम रहने वाला है, वो 25 ही रहेगा। ठीक है, एंड हमको और क्या निकालना है इसमें, कॉस ऑफ एंगल सी। कॉस ऑफ एंगल सी हम कैसे निकालेंगे, कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, एंड हमारा हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे चारों रेशियोज की वैल्यू आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sine of angle A is 3/4, and then we have to calculate cos of angle A and tan of angle A। अगर साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमको गिवन है, तो हमको कॉस ऑफ एंगल ए एंड tan ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालना है। ये हम इजीली निकाल सकते हैं। हमको पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो हम ए को साइड कंसीडर, ठीक, और बी में हमारा राइट एंगल है, और ये अगर साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमको गिवन है 3/4, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा है, साइन ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इस फॉर्मूले से इक्वेट करें, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आने वाली है 3, एंड हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रखी है। और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस तो हमारा बिगेस्ट साइज जो होता है, बिगेस्ट क्या कहना चाहिए, साइड होता है, उसको हम हाइपोटेनियस कंसीडर करेंगे। और जो बच गया हमारा ये एंगल के एडजेसेंट वाला जो साइड है एंगल और परपेंडिकुलर वाला, वो हम बेस कंसीडर करते हैं। अब बेस की वैल्यू हमको नहीं पता है, बेस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू, हमको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस है हमारा 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको बेस की वैल्यू, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 दैट इज 7। बेस इज इक्वल्स टू, हमारा बेस आ जाएगा √7, 7 यूनिट्स बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमको निकालना है कॉस ऑफ एंगल ए एंड टेन ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एयर बेस, बेस क्या है हमारा √7, एंड हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है 4। सिमिलरली हम tan ए भी निकालेंगे, tan ए का क्या फॉर्मूला होता है,
tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 एंड बेस की वैल्यू है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो हमको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ एंगल ए एंड सेक ऑफ एंगल ए। वैसे ही हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी। और हमको ए के रिस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो हम ए को यहाँ रख लेते हैं और राइट एंगल हमारा बी पे बनेगा। पहले कॉर्नर को हम, ठीक है। और गिवन क्या है? 3 cot A इक्वल्स टू 8। हाँ, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल के अपोजिट वाला साइड, बेस हो जाएगा एंगल से जो एडजेसेंट साइड है वो, और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा बिगेस्ट साइड। अंडरस्टूड? तो 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 गिवन है हमको। तो हमको क्या निकालना है? पहले तो हम निकालेंगे cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 उधर ट्रांसपोज कर देंगे। और cot A का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि tan A का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमने देखा बेस की वैल्यू है हमारे 8 एंड परपेंडिकुलर है 15। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 15 और बेस है हमारा 8। अब अगेन हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड जो कि हाइपोटेनियस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। को परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज पता है, हम इससे हाइपोटेनियस की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर इक्वल्स टू टेनियस। यार 15 का स्क्वायर होता है 25 और 8 का स्क्वायर होता है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर मिलने वाला है 289 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा होल रूट 289। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 289 किसका रूट होता है? 289 17 का रूट। हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 17। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ई अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, सेक ऑफ एंगल ए। सेक ऑफ एंगल ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होने वाला है हाइपोटेनियस अपॉन, यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस है 17 और जो बेस है हमारा वो है 8। ये हमारा आ गया 17 अपॉन 8। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन sec of angle A is 13 upon 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec of angle A की वैल्यू हमको गिवन है, बाकी के जो 5 रेशियोज बचे हुए हैं की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पे मैं हर बार ट्रायंगल ABC ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर हम एक जैसा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने में इजी होता है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। जो हम एंगल लेने वाले हैं, एंगल के एडजेसेंट जो साइड रहता है उसको हम बेस बोलते हैं, और एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो साइड बच गया हमारा, जो लार्जेस्ट साइज साइड है, उसको हम हाइपोटेनियस कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो सेक ए की वैल्यू हमको पता है 13 अपॉन, और सेक ए का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 13, बेस की वैल्यू हो गई 12। अब अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। हेयर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको नहीं पता है, हम बेस को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, बेस की वैल्यू है 12। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 जो कि 13 का स्क्वायर है माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 100, डिफरेंस आएगा 25। अब हम यहाँ से रूट करेंगे तो परपेंडिकुलर आने वाला है हमारा 5। तो हमको तीनों साइड्स पता चल गए। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन ऑफ एंगल ए के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 5, हाइपोटेनियस क्या है? 13। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमारा बेस है 12 और हाइपोटेनियस है 13। नेक्स्ट tan ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 5 upon 12. Next one is cosec of angle A. Cosec of angle A equals to h upon that is 13 upon 5. 13 upon 5. Okay. Next sec of angle A तो हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब बच जाता है हमारा cot of angle A. Cot of angle A is equals to base upon perpendicular। यार बेस क्या है हमारा? 12, परपेंडिकुलर है 5। यहाँ पे हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है गिवन tan ऑफ एंगल ए इज 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो फिर से हम यहीं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ए पे कंसीडर, बी पे कंसीडर। तो हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये होगा हमारा, और ये height। अब tan ऑफ एंगल ए क्या गिवन है हमको? tan ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 4/3। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हमने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 5। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा? होल रूट 25। मतलब अब इससे हम लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज 4/5। कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज अपॉन 5। tan ए ऑलरेडी गिवन है हमको। अब नेक्स्ट है हमारा कॉसेक ए। कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 साइन है तो 5/4 हमारा कॉसेक हो जाए। और सेक ए जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है,
को हम 5/3 लिख देंगे, तो हमारा लास्ट रेशियो है कॉट ए, कि tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अपॉन। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए